Once again, good morning to everyone, respected dignitaries, and today's knowledge sharing personality, Miss Mansi ma'am, and chairman of the school, Mr. Sandipan Reddy sir, principal ma'am of the school, Synergy National School Ambejogai, coordinator of secondary, Mr. Tushar Joshi sir, and my colleague, Mr. Rashid Deshmukh sir, along with today's host, Mr. Master Advait Bhise. So once again, I welcome you all to the knowledge sharing sessions of the year 2021 with Mansi ma'am. Hope the session will be awesome. Now I request Advait Bhise to just start the and share the intro of today's guest speaker. Over to you, Thank you. Advait. Thank you, sir. Hello, everyone. I welcome you all to Synergy Talks on behalf of Synergy National School. I welcome our guest, Ms. Mansi Gangrani Bhatade. Hello, ma'am. I welcome you on behalf of Synergy National School. Ms. Mansi Bhatade has more than 20 years of experience in administrative managerial and educational innovation. In an educational institute, she has a high proficiency of verbal communication and excellence in intrapersonal communication. She has professional experience of being a principal of school named Ujjwal Sprouter International School since 2006 and administrative assistant to the president of the school from 2006 to 2003 to 2006. Ma'am has completed BCom, MA, Sangit Visharad. Ma'am has taken lots of training sessions for teachers, students, colleges, and for parents also. She is the founder of Life Economics. She has conducted sessions for teachers such as training program for teachers, effective teaching, handling adolescents, leadership strategies. She has conducted sessions for students such as healthy and unhealthy touch, effective study methodology, dealing with adolescents, handling teenage problems, cyber threat. For parents, she has conducted sessions such as dealing with teenagers, effective parenting, graphology in parenting. She has another skills such as graphology, parent counseling, child psychologist, dramatics, and motivational speaker. Viewers, let me share you that ma'am has received or she has been awarded with Shiksha Gaurav Award 2018, Indian Icon Award 2018-19. Ma'am has some hobbies. She likes reading and traveling too. Thank you, ma'am. It was an honor for us that you have given your precious time for Synergy Talks. So, hello Bhavika ma'am, a very good morning to you, to Sandeepan sir, who just recommended my name over here, and Bhavika ma'am just let me come here and have a talk with all you beautiful kids, the teachers over here, and all the students. A very good morning to all of you. I know it's Sunday morning और टॉपिक भी ऐसा है जहाँ पे लगता है यार व्हाट इज दिस, एक ही तो चीज आज तक बड़े प्यार से करते आ रहे टीवी देखना, और वो भी मैम ने बोल दिया देयर इज नथिंग रियल. But then I'm not saying don't watch TV, but then whenever we watch TV, we should really understand what are we watching. Is it really worth? Is it really good? Should we or shouldn't we watch it? So that is the topic we are going to talk about. I would request you all if you can just on your cameras so I can see you all in your expressions and your reactions, so that would be really nice and I can understand what are you feeling with my talks. So it's a humble request, if you can on your cameras, that'd be really nice. Now I can see some cameras coming up, some students looking at me, kaun hai ye हमारे टीवी को खराब बोलने वाली, let us check. Okay, so I'm here and I hope I'm not going to bore you for an hour or something like that, but I'll be just trying to show you or tell you the realities of TVs and movies. So हमने बचपन से ये बात सुनी है ना कि TV is an idiot box. Now, why is it called as an idiot box, and why people every time tell you कि don't sit in front of the idiot box. Idiot box है यार, क्या understand, don't waste your time, study. This is a time when you should study. This is a time when you should do something creative. क्या टीवी के सामने बैठे रहते हो दिन दिन भर, आंखें खराब हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करता है, बस टीवी के सामने बैठ के बात करते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो. मेरे ख्याल से लॉकडाउन में तो ये हर बच्चे ने सुना है ना. Yeah, your smiles are telling. बहुत सुना है, बहुत ज्यादा सुना है, मम्मा ने बहुत डांटा है इसके लिए. I totally understand, but then
it's okay. That was the only way we could do something, or we could relax down. क्योंकि टीवी में भी तो मतलब हर जगह तो यही था, कोरोना है, बाहर नहीं जाना है, खेलना नहीं है, कुछ नहीं है. So we sat in front of TV. We had no other option. But then in regular life also, when we watch TV, हमको यही लगता ना कि इसमें जो कुछ है सब सही हो रहा है, सब बराबर हो रहा है. And this is how life is actually. But then let me tell you, ये जो रियलिटी शोज जो होते हैं ना, ये रियलिटी शोज भी रियल नहीं होते. ये रियलिटी शोज में भी सब झूठ होता है, सब स्क्रिप्टेड होता है. कौन बनेगा करोड़पति से लेके तो डांस इंडिया डांस या फिर कोई भी रियलिटी शो ले लो, इसमें सब फिक्सिंग होता है. इट इज टोटली फिक्स्ड. ना आप बोलोगे ऐसे कैसे फिक्स हो सकता है? इट इज नॉट दैट इजी. I know it is not that easy, but you know, when it comes to TVs and when it comes to reality shows, it is all about money. So जितना जिसके पास ज्यादा पैसा, उतना वो बच्चा आगे बढ़ता जाएगा या उतना उसको चांस ज्यादा दिया जाएगा. और इसीलिए हमको जब शोज दिखाए जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि कोई इंसान या कोई बच्चा कोई शो जीत रहा है, या फिर कौन बनेगा करोड़पति में इसको इतने पैसे मिले, इतने सारे पैसे लेके वो घर गया, बट देन दैट इज नॉट द ट्रूथ. आपने अगर बीच में अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो बीच देखो, एक केबीसी में एक बंदा था जिसको 1 करोड़ का प्राइज मिला था, राइट? ही वन द 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ उनको मिले थे. एंड आफ्टर विनिंग 1 करोड़ ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर मैन टुडे ही इज सेलिंग टी. उनका खुद का भी टी स्टॉल है. बैंकरप्ट हो गए, पैसे सारे चले गए, क्योंकि 33% तो उनको कंपलसरी टैक्स में पे करना पड़ता है. तो 1 करोड़ का 33% इज 33 लाख. तो 33 लाख तो वैसे ही उन्होंने पे कर दिए गवर्नमेंट को. उसके बाद में बचे हुए पैसे, देन इट इज द शेयर ऑफ केबीसी एंड द पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर एजेंट्स बिटवीन इट कि हाँ हमने आपको यहाँ तक लाए हैं तो आप हमको कितना पे करोगे एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दैट इज व्हाई और वो पैसा निकलते वो 1 करोड़ का हार्डली 15 से 20 लाख वो पर्सन के हाथ में आता है. तो इट इज दैट प्रॉब्लमैटिक. सो इसीलिए, और ये बाकी भी शोज के लिए यही सही होता है कि आप जब डांस इंडिया डांस या फिर आप एज अ चाइल्ड जब आप देखते हो ना कि मुझे इसके जैसा डांसर बनना है, मुझे ये स्टंट करना है, मुझे ऐसा डांस करना है, मुझे ऐसा, ड्रामेबाज जो था ना, वो ड्रामेबाज, वो छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े एकदम बढ़िया से ड्रामा करते थे, एक्टिंग करते थे. वी फेल्ट वाओ, द चाइल्ड इज सो गुड, सो इंटेलिजेंट. बट एक्चुअली स्पीकिंग, दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड. वो बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, उनके अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं, क्योंकि इतना लर्न करना पॉसिबल नहीं होता है. सो दे आर गिवन टाइम, रिकॉर्डिंग्स के लिए अलग अलग टाइम होते हैं, तो ये सारी चीजों के लिए टाइम दिया जाता है. एंड देन ये पूरा शूट होने के बाद में इसको एक इसमें कंपाइल करके फिर बताते हैं कि उस एक बच्चे ने कितना अच्छे से प्रेजेंट किया. बट देन the truth is that all these shows are totally scripted. Yeah, I know there are questions coming up, but I'll answer you if okay. So if you have any question, what we'll do is I'll first have a discussion and then we'll have a question answer session. Okay, so that whatever I say, usko jo bhi aapko mujhe question karna, you can just ask me. Okay, fine. So moving on, then it is हमारे पास में क्या क्या होता है. और हमारी टीवी सीरियल्स, oh my god, के सीरियल्स तो आपको पता है, they are so horrible. के सीरियल्स यानी जो what is that, एकता कपूर की जो सीरियल्स है जिसमें वो बिल्कुल सास बहू वाली चीजें होती है, एंड देयर इज वन विलन सासू जी, या वन विलन घर में कोई लेडी होती है जो ऐसे परेशान करती है सारी औरतों को. एंड द वर्स्ट पार्ट, सारी औरतें और सारे मर्द इतने मेकअप और इतने पॉश कपड़ों में रहते हैं. अच्छा, देखा है कभी अपने मम्मी और पापा को या फैमिली मेंबर्स को कि रात को सोते हुए भी फुल मेकअप के साथ में सोते हैं? हम भी इतने फ्रेश, अच्छा सुबह उठने के बाद में कितने फ्रेश. हमारे बाल तो कैसे बिखरे पड़े होते हैं, है ना? हम सबके बाल ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ बिखरे पड़े होते हैं. सुबह उठ के पहले ऐसे आईने में देखो तो ऐसे लगता है बाप रे भूत देख लिया. सुबह सुबह खुद को देख के ऐसे लगता है ना कि भूत देख लिया. बट देन इमेजिन दैट ये लोग रात को सोते वक्त पूरे दिन भर दे हैव द प्रॉपर लिपस्टिक, बॉयज का प्रॉपर ड्रेस होता है, कोई खराब नहीं होता है, दे हैव ब्यूटीफुल लुक्स, दे हैव ब्यूटीफुल फिगर्स, और कोई काम नहीं होता है ना औरतों को. अच्छा, अपनी मम्मी को आपने दिन भर देखा है, वो ऐसे फ्लोइंग पल्लू में ऐसे घूमते रहती है दिन भर इधर से उधर और कोई काम नहीं करती. हमारी मम्मियां तो कितना काम करती है ना. तो समथिंग व्हाट आई बिलीव इज इंडियन कल्चर में जो ये सीरियल्स जो आई है ना, दे आर रूइनिंग आवर फ्यूचर. हमारी सोच ही खराब हो रही है. हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे. जो फैमिली हमने घर में कभी देखी नहीं, वो हमको टीवी पे दिखती है, और फिर हमको लगता है कि हाँ ऐसी कुछ तो भी फैमिली है, ऐसी कुछ तो भी होनी चाहिए मेरी फैमिली. बट आई डोंट थिंक दैट रियली वर्क्स एंड दैट रियली हैपेंस. सो
ये बात ध्यान में रखो कि ये जो टीवी में इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाली औरतें दिखती है, जो दिन भर मेकअप में रहती है, सब कुछ करके रहती है, हस्बैंड्स जो है या फिर जो अंकल वंकल है वहां के, वो एकदम ही स्मार्ट हैंडसम डैशिंग लिखते रहते हैं 24 घंटे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारे पापा तो कभी कभी बनियन में भी घूम लेते हैं वहां पे, तो पता नहीं वो लोग, बनियन तो छोड़ो, उनके जो रात के कपड़े होते हैं वो भी इतने भारी भारी कपड़े होते हैं कि हमारे घर वाले तो वो सिर्फ पार्टी फंक्शन में पहनते। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस हैपनिंग। मूविंग ऑन, द मेजर थिंग आई ऑलवेज थिंक इज अ प्रॉब्लम इज, हमारे ये जो इंडियन सीरियल्स है ना, इंडियन सीरियल्स में प्यार है, उसके बाद में ट्रस्ट है, फेथ है, ये सारी चीजें इतनी चेंज होती जा रही है। प्यार मतलब ऐसे हो गया कि प्यार यानी एक लड़का और एक लड़की, दूसरा कोई प्यार हो ही नहीं सकता है। ऐसे नहीं होता है। लव इज नॉट लिमिटेड टू अ गर्ल एंड अ बॉय। लव इज लव विद ममा, लव विद पापा, लव विद अंकल आंटी, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे प्यार हो सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, लव का क्या है, लव में मतलब अगर हम सीरियल्स देखें तो क्या होता है, पहले वो जो हीरो होता है, जो हीरोइन होती है, पहले दोनों में हमेशा सिर्फ झगड़ा होता है, और फिर झगड़ा होने के बाद में ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, आप लोग इतना एक दूसरे से झगड़ते हो, do you really think you can love each other every time? No, it doesn't happen. This is all something really fake, and this is all something where things don't work the way they are working. So कहीं ना कहीं फेथ भी बहुत जरूरी चीज है, जो हमको लगता है कि हमारे फैमिली में होती है। बट जब आप मूवीज देखते हो या फिर टीवी जब आप देखते हो, तो उसमें बस यही चलता रहता है, दैट दे कीप ऑन नैगिंग ईच अदर। ये औरत उसकी औरत दूसरी औरत को जाके पता है उसके घर में आज ऐसे ऐसे हुआ है और मैं ये करने वाली हूँ। सो इट्स ऑल समथिंग हैपनिंग शिट ऐसे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग ऐसे घर में ऐसे 24 घंटे ऐसे कोई बिहेव करे और ऐसा कुछ करे। तो इट रियली डजंट हैपन लाइक दैट। वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये औरत को कोई काम नहीं है, इसको पैसे मिल रहे हैं ये सब करने के, राइट? शी इज पेड फॉर द ड्रामा शी इज डूइंग, क्योंकि वहां पे सीरियल में काम करेगी तो उनको पैसे मिलेंगे ना, वो जो लड़का लड़की जो भी है। हमको ऐसे बिहेवियर करने से पैसा मिलने वाला है क्या? नो, नोबडी इज गोइंग टू पे अस। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Well, moving on, cartoons. How many of you love cartoons? Just give a big fat thumbs up if you all love cartoons. Let me see the thumbs up coming up. Bhai, there are kids who are like, thumbs up, इसको तो कुछ मत बोलना प्लीज, हमारे कार्टून्स तो छोड़ दो। No, but I'm not going to spare your cartoons, okay? Because cartoons are the most vulnerable things जो आप देख रहे हो। हाँ, बहुत सारे thumbs up आ गए। So as a child even I used to see, हमारे वक्त तो टॉम एंड जेरी था, and then we had that, वो स्पिनच कौन खाता था? Popeye the Sailor Man, yeah. So even I used to see that, and I used to feel this is the best thing to happen to see. But अभी जो कार्टून्स है ना, the cartoons really make us aggressive. क्योंकि क्या होता है कार्टून में, एक छोटा बच्चा रहता है, मे बी वो छोटा भीम हो या फिर वो कौन होता है आपका, लिटिल सिंघम है। अब पूरे इंडिया में ये 2-3 ही बच्चे हैं जो सारे दुनिया को बचा सकते हैं, एंड वहां के पुलिस पागल है, लोग पागल है, घर वाले पागल है, सब पागल है। एक बस वो छोटा भीम है जो सब संभाल लेता है, या वो लिटिल सिंघम है जो सब संभाल लेता है, या फिर आपको मतलब यू लर्न टू बी सुपर नेचुरल, यू लर्न टू बी सुपरफ्लुअस, कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब एज अ चाइल्ड वी कैन जस्ट गो रन फाइट एंड डू एनीथिंग। इट इज नॉट पॉसिबल घर के बाहर बिना मम्मी के परमिशन के निकल के तो बताओ, सोच सकते हो मम्मी की परमिशन के बिना घर के बाहर निकलने का? नो, घर आके जो पिटाई होगी ना, पता चलेगा फिर कि मम्मी की परमिशन के बिना निकलना इज सो डिफिकल्ट। एंड ये छोटा भीम और ये सब लोग, वो देख लो बस घर के बाहर ही रहते हैं 24 घंटे, और उन्हें ये मसीहा बने पड़े होते हैं कि सारी दुनिया को संभालना है। इट्स नॉट पॉसिबल। छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई किड्स आर किड्स एंड अडल्ट्स आर अडल्ट्स। एंड ऑफ कोर्स जो पुलिस है, पुलिस नोज हाउ टू वर्क। अगर हर चीज छोटे बच्चे कर लेंगे तो भाई फिर पुलिस की जरूरत क्यों होगी ना? इट्स नॉट दैट इजी। इवन जो आप जो बाकी देखते हो, वो कौन से है, कॉकरोच वाली कौन सी है आपकी कार्टून बताओ? ऑगी एंड द कॉकरोचेस, राइट? आप चैट कर सकते हो, आई वांट यू टू चैट विथ मी, टू टॉक विथ मी। या सो ऑगी एंड द कॉकरोचेस वगैरह, ये जो है ना, नाउ दिस इज ऑल टीचिंग यू अग्रेशन, कि झगड़ना कैसे, एक दूसरे को मारना कैसे है, हमेशा दूसरे को परेशान कैसे करना चाहिए। सो दिस इज मेकिंग अस अ लिटिल, we don't have the love for other people around us, you know। हमको ये लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही हमने किसी को अगर मार दिया, कोई कुछ कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इट्स नॉट दैट इजी। हम किसी को जाके ऐसी मार नहीं सकते, किसी को लग जाता है, किसी को दुखता है, हम वो फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे। सो आई थिंक दिस इज व्हाई टीवी कार्टून्स आर अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। सो इसीलिए कार्टून्स हमने थोड़ा जितना कम हो उतना देखना चाहिए। मूविंग ऑन, आप बहुत ज्यादा ये हो जाते हो, you don't feel comfortable when you have the discomfort कि आपको बस आप ही सबसे सुपरनैचुरल पावर हो आपको लगने लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी छोटा भीम और ऐसे कोई कैरेक्टर्स में किसको इसको अच्छा लगता है? एंड यू से हाँ मैं छोटा भीम हूँ, मैं, और क्या क्या होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, यू नो आई एम सो बैड एट वॉचिंग टीवी, सो मुझे याद ही नहीं आता है कि मैंने ऐसे कौन से चीजें देखी है। बट हम सबको लगता है ना कि हाँ हम ऐसे कोई सुपरनैचुरल कैरेक्टर बन जाए और हम ऐसा कुछ करें। बट देन दैट इज वेरी अंडरस्टैंड कि अगर आप ये कोशिश भी करोगे और अगर आप ऐसे जंप करने जाओगे, ऐसा कोई स्टंट करोगे और नीचे गिर गए, तो दुखना तो दूर की बात, लगना तो दूर की बात, मम्मी की झापड़ पहले पड़ेगी, पड़ती है, डांट मिलती है मम्मा की, क्या किया ये पागलपन क्यों किया, बोला था ना ऐसे जंप मत करना, लग जाएगा, बोला था ना। But then the thing is that is cartoon and this is the reality of your life. So the cartoons and realities don't match. They do keep on changing and we have to understand that they are totally different. Moving on, movies कौन देखता है? How many of you see movies? Big fat thumbs up, big fat thumbs up, big fat thumbs up. जल्दी हाँ। What type of movies you love? Fiction वाला movie, romantic वाला movie, और कौन सा टाइप का मूवी आपको जमता है? Give me 1 second, I have a call to attend. Yeah, I'm so sorry, I was a little busy. So yeah, हम सबको ना ये ऐसी रोमांटिक वाली मूवीज पसंद आती है, या फिर स्टंट फाइटिंग वाली मूवीज पसंद आती है, ये सब कुछ पसंद आता है। हमेशा ट्राई एडवेंचरस, ये एडवेंचरस मूवीज पसंद आती है। उसके बाद में जिसमें बहुत सारी अलग अलग स्टंट्स होती है, वो हीरो आके ये धड़ 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 एक साथ 50 लोगों को ठोकता है, मारता है, एंड वी फील या आई एम गोना बी लाइक दैट हीरो। किसको किसको लगता है कि आप वो हीरो हो जो एक साथ 50 लोगों को पीट सकता है? ट्रस्ट मी, वो हीरो खुद भी 50 लोगों को साथ में नहीं पीटता है। इट इज all just a movie scene created, but the truth is thriller movies भी होती है। God, I'm scared of no, I'm scared of ghost movies basically. या सो हम सबको लगता है कि हम वो हीरो या वो हीरोइन बन जाएंगे जहां पे हम जाके ये चोर को पकड़ेंगे या फिर वो दुश्मन को पकड़ेंगे और धाड़ 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 ठोक ठाक कर देंगे। बट थिंक अबाउट इट, कैन वी रियली हिट पीपल लाइक दिस? is it that easy कि आप हाँ एवेंजर्स तो आई थिंक इट इज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं उनके यहाँ पे ना, मतलब अगर मैं एवेंजर्स की बात करूं तो एवेंजर्स में पूरे वर्ल्ड में, वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, और उनका वर्ल्ड कहाँ पे सीमित होता है? अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बस यहीं पे उनका वर्ल्ड खत्म हो गया। वो ना इंडिया में आते हैं, ना पाकिस्तान में जाते हैं, ना श्रीलंका में जाते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट, यूरोप, रशिया कहीं नहीं घूमते, बस उनके इसमें घूमते हैं। एंड देन दे आर लाइक पूरे दुनिया को खतरा है, हम सबको बचाना है। नाउ इमेजिन कैसे बचाएंगे? आपके पास ऐसी कोई, is it really possible you have that supernatural power and you do something like this and you just go and just hit people and you save the world? हम खुद को सेव नहीं कर सकते, और अगर ये रियल होता तो फिर तो ऐसे कितने सारे लोग होते जो ऐसे सुपरनैचुरल लोग बन जाते, एंड दे वुड हैव रियली help the world to be a nice place to live. So it is not possible कि आप movies में आपको जो लगता है and you as a hero can go and hit people. अच्छा, कभी रियलिटी में सोचा है कि सच में जब ये हीरो ऐसे एक साथ धाड़ 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 एक मारता है, he gets one fight and the person falls down like पता नहीं वो ऐसे कहाँ पूरी दुनिया में जाके गिरा पड़ा हुआ होता है ना। So कोशिश की कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करने की, एक झापड़ मारी तो क्या होता है, मेरे को लग गया, हाय जोर से लग गया। हैपेंस टू, वैसे हुआ है आपके साथ में कि आपने एक पंच मारने की कोशिश की और पता चला इट्स सो हार्ड, खुद को लग जाता है। तो इमेजिन करो वो अकेला हीरो इतने कैसी चीजें कर सकता होगा। हाँ, बागी 3, 4, दीज आर जस्ट हॉरिबल मूवीज। इतना झूठ वो टाइगर श्रॉफ दिखाता है कि ही कैन हिट एवरीबडी, बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टाइगर श्रॉफ को अगर अकेले में सच में ऐसा भेज दो, अच्छा आई डोंट अंडरस्टैंड, ये जो हीरो हीरोइंस होते हैं ना, ये मूवी में अकेले सारी दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन रियलिटी में इन्हीं लोगों के साथ में 4-4 बॉडीगार्ड्स घूमते हैं। सो अंडरस्टैंड कि ये खुद को बचा नहीं सकते, इसीलिए ये बॉडीगार्ड्स ले लेके घूमते हैं सारे हीरो हीरोइंस। तो जो ये मूवी में दिखाते ना दैट दे कैन जस्ट
be the hero of the world and they can just help the world and they can just help themselves and kill anybody and trouble anybody. But in reality, they cannot do anything like that. And इसीलिए उनके साथ में 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड्स उनके साथ में घूमते हैं to see that कि भाई आप सेफ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. So understand that this is not the reality. Moving on, हर मूवी का क्या होता है ना, एक ही चीज होता है, हैप्पी एंडिंग होता है हर मूवी का, है ना? Because our brains are trained, हमारे दिमाग को ये ट्रेन किया जाता है कि हर चीज में एंड में अच्छा ही होना चाहिए. हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी चीज में बुरा हो, क्योंकि हमको लगता है जो हीरो है ना उसके साथ में अच्छा ही होना चाहिए, बुरा हो ही नहीं सकता है. जो हीरो हीरोइन है उनके साथ में सब अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा. बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट द केस इन रियल लाइफ. एंड जो हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, नॉर्मली क्या दिखाते हैं, एक लड़का एक लड़की, दे फॉल इन लव, दे फाइट विद द सो कॉल्ड दुश्मन जो उनके प्यार के बीच में आता है, एंड देन दे हिट द पर्सन एंड वो फिर दोनों साथ में आ जाते हैं. अच्छा, पता नहीं उसके बाद में दे आर गोना लीव अ सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ, ये कुछ नहीं मालूम होता है. सो दे ओनली शो यू कि प्यार के बीच का जो स्ट्रगल था वो उन्होंने कैसे पार किया, बट यू नेवर नो हाउ आर दे रियली गोना लिव अ हैप्पी लाइफ और नॉट. सो हैप्पी एंडिंग इज जहां पे बस हीरो और हीरोइन साथ में आ गए, चीजें सब अच्छी हो गई, फैमिली मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म. But that is not the happy ending, rather that is a start of new life. तो अगर न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है तो एक और पिक्चर बनना चाहिए, पर आगे का पिक्चर कोई नहीं बनाता है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट यू कैन नॉट शो ऑल द ट्रूथ्स, एंड दैट इज व्हाई यू गो एंड वॉच मूवी, कि ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ लाइफ में सब बुरा बुरा चल रहा है. सो दिस इज नॉट ट्रू कि हर बार आपकी लाइफ में देयर इज गोइंग टू बी अ हैप्पी एंडिंग एंड यू आर गोना सी एवरीथिंग रियली नाइस. ऑल्सो दे शो यू बिग लग्जरियस थिंग्स, है ना. आप अगर मूवीज देखते हो तो हम क्या देखते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, उनके ड्रेसेस के ब्रांड्स, ओ माय गॉड, मेकअप के ब्रांड्स, द लुक्स दे हैव, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, सो वेरी एक्सपेंसिव. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि हम ऐसे कुछ कपड़े पहने, ऐसे हमारा मेकअप हो, हम वो ब्रांड्स का इस्तेमाल करें. रादर ये ब्रांड्स ये सारी मूवीज पे पैसे इसलिए खर्च करते हैं बिकॉज दे अर्न मनी आउट ऑफ इट. क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े उस मूवी में देखते हो तो यू प्रिफर टू गो एंड बाय दोज ड्रेसेस. ओके, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये होता है कि आपने जो ब्रांड के कपड़े देख लिए, जो ब्रांड का आपने मेकअप देख लिया, जो लुक देख लिया, वो आपको करने का मन हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई द कंपनीज spend money on the people and that is why they want to wear those dresses. So इसके लिए ये खर्चा हीरो हीरोइंस पे किया जाता है. But the truth is, क्या हम सब इतना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम ऐसे कपड़े पहन के घूम सकते हैं? अच्छा, जो हीरो हीरोइंस कपड़े पहन के घूमते हैं, क्या हम लोग सच में ऐसे घूमेंगे घर में? ऐसे नॉर्मल में घूमते हम लोग नहीं घूमते. इट इज नॉट पॉसिबल. अगर हम लोग ऐसा घूमने लग गए, लोग पागल हो गए, ऐसे कपड़े पहनता है कोई घर में? जाओ कपड़े चेंज करके आओ, होता है ना. So it's not possible. We don't wear like this of dresses. Also, yeah, somebody wrote historical movies like Manikarnika. Yeah, there are movies, historical movies, no doubt about that. But yes, जितनी भी ऐसी historical movies है, पद्मावत हो गई या फिर what are the other movies? Just yeah, मस्तानी, बाजीराव मस्तानी. Yeah, so there are some movies like this, but then इसमें भी इतना ज्यादा ग्लैमर डाला जाता है मूवी में. इन मूवीज में इनके ड्रेस के ऊपर, इनके लुक्स के ऊपर, इनके ज्वेलरीज के ऊपर इतना खर्चा होता है ना. इसीलिए इनके पार्टनर्स कौन होते हैं? पूना गढ़के एंड सन्स, या फिर कोई ऐसी बड़ी बड़ी तनिष्क वाली ऐसे जो कंपनीज होते हैं ना, जो बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो कंपनीज इनके पार्टनर्स बनते हैं. क्योंकि ये जब ज्वेलरी आप मूवी में देखोगे तो आपको खरीदने का मन होगा. सो जब आप खरीदोगे तो फायदा किसको होगा? क्योंकि ये ज्वेलरी जो बनाई जाती है, ज्वेलरी का जो मेकिंग होता है उसका पेटेंट लिया जाता है. नाउ ये हम ओरिजिनल तो खरीदेंगे नहीं, हम रियल डायमंड या रियल पर्ल तो खरीदते नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी यानी जो नॉन रियल ज्वेलरी होती है वो खरीदते हैं हम लोग. फिर उसका पेटेंट ये लोग बेचते हैं. And there are these small companies who buy the patents and then these designs are prepared and उसमें फिर आप वो same designs वाले jewelries पहनते हो. So finally ये companies को अगर आप वो product उनका नहीं खरीद रहे हो तो भी उनको फायदा होता है, क्योंकि आप उनके patented product का इस्तेमाल कर रहे हो. So somewhere this is how they get money out of it. This is how they are earning out of whatever they are doing. So ये इंडस्ट्री ना बहुत ज्यादा होशियार है. इस इंडस्ट्री में जो कुछ होता है, it is very thoughtful, it is very
क्लियर कि हम जो कुछ करेंगे उसमें से पैसा आना ही चाहिए, तो किसी भी तरीके से सिर्फ पैसा आना चाहिए, इसलिए दे आर वर्किंग। और हम पागल होते हैं, हमको लगता है वाओ ऐसे कपड़े होने चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, आई फॉरगॉट वन थिंग, टीवी में हम लोग सारी वो एड्स देखते हैं खाने वाली, एंड वी थिंक वाओ केलॉग्स, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक केलॉग्स इज रियली हेल्दी फॉर यू ऑल? एंड हमारी आजकल सारी एड्स जो है ना, दे आर मेड विद द किड्स, सारे बच्चे होते हैं। फ्लिपकार्ट की एड में चिंटू चिंटू बच्चे आते हैं, दे हैव अ वॉइस, वेरी एल्डरली वॉइस, एंड दे से हेलो मिस्टर बजाज, डिडंट यू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट? ओह इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट। बट देन डू यू थिंक आपके उम्र के बच्चे ऐसे कुछ सोचते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं? नो, वी डोंट डू दैट। Now, why do they do this? Why do they show that the products are really good? Why do they take kids into it? क्योंकि हम लोग अपने उम्र के बच्चों को देख के आपको लगता है ना, हाँ मम्मा उसने वो किया, मुझे भी वो चाहिए। मैं मम्मा आई वांट टू बाय द केलॉग्स, मम्मा आई वांट टू बाय किंडर जॉय, मम्मा आई वांट टू बाय दिस ईटेबल, दैट ईटेबल, जितना भी टीवी में दिखना है वो सब खाना है हमको। रिमेंबर वन थिंग, एडवर्टीजमेंट जिस चीज की हुई वो प्रोडक्ट आपके लिए 100% हार्मफुल है, और इसीलिए उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, वरना वो चीज एडवर्टाइज नहीं होगी। किसी ने कभी देखा दवाइयों का एडवर्टीजमेंट होते हुए? नहीं। कभी देखा है कि आपका जो रेगुलर खाना है उसकी कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि मम्मा के हाथ की बनाई हुई आलू की सब्जी खा लो? आलू नहीं बोलते। So the things that are good for you will never be advertised, and the things that are not good for you will always be advertised. To see that you buy the product, you eat the product, and you make the company grow healthy in terms of money. क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को सिर्फ पैसा चाहिए, और हम क्या हो जाते हैं? गपदुल्ले हो जाते हैं ना। वो चिप्स खाते हैं, फिर हम कुरकुरे खाते हैं, फिर और वो किंडर जॉयज खाते हैं, अलग अलग चॉकलेट्स खाते हैं, डेयरी मिल्क, सिल्क, आई नो व्हाट नॉट अदर चॉकलेट्स वी ईट, एंड वी फील इट्स सो यमी। बट ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल मेकिंग यू सो फैट। सो कुछ टाइम के बाद में हम एक चेयर में नहीं, हमको 1.5 चेयर लग जाती है ना। वी नीड मोर देन 1 चेयर टू सिट, एंड वी आर लाइक वी आर जस्ट ग्रोइंग इन आवर, वी आर जस्ट ग्रोइंग आवर बॉडी टू लाइक अ गुड साइज, बट देन दिस इज ऑल ट्रबलिंग अस। So we have to take that care that ये जो हमको extra large life दिखाई जाती है, luxurious life दिखाई जाती है, खाने के अच्छे products दिखाए जाते हैं, all these things are really not good for us. Even जो आपको movies में one thing that goes very common when it comes to movies is drinking alcohol and what is that? Smoking is very common. है ना? आप कोई भी मूवी देख लो, उसमें हीरो बस आपको यही दिखेगा, कोई बार में बैठा हुआ है एंड ही इज जस्ट ड्रिंकिंग एंड हैविंग लॉट ऑफ फन, एंड ही हैज हिज फ्रेंड एंड दे बोथ आर डूइंग ऑल टाइम पास। तो ऐसी सारी चीजें दिखती है हमको। लेकिन आपको पता है कि अल्कोहल कितना डेंजरस है हमारे लिए? वो वहां पे मूवी में भी लिखा हुआ होता है, अल्कोहल इज डेंजरस फॉर यू, डोंट ड्रिंक। फिर भी मूवी में दिखाते हैं अल्कोहल। यू नो, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ इंडियन सोसाइटी, या फिर मैं कहूँ टू बी वेरी फ्रैंक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आपने ड्रिंकिंग स्मोकिंग करना नहीं है। हर मूवी के पहले ऐड दिखा देते हैं, हर बार जब ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग के सीन्स आते तो ऐड दिखा देते दैट यू शुड नॉट डू इट। बट देन वो सीन में हमको वही दिखता है, तो हमको क्या लगता है? इट इज awesome, this is what you should do. They don't put a ban on the companies who are producing alcohols and liquor or maybe cigarettes or something like that. They are telling you not to do that. At the same time, in the TVs, in the movies, they are showing कि आपने वो पीना चाहिए, that is very normal, that is not a big issue. But you shouldn't drink because लीवर आपका बहुत जल्दी खराब हो जाता है। So if you really don't care about us और हमको लगता है यार जी के क्या करना है, तो drink a lot. जल्दी मरने का मन होगा तो भाई पी लो। क्योंकि क्या है ना, जिसको बोर हो जाती है लाइफ, the person can surely drink. But if you are there in the world to do something really good, if you want to do something really wonderful in your life for yourself and for the people and for the society, you should not drink. I know it is very idiotic concept जब हम बड़े बोलते हैं कि पीना नहीं चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें खराब होती है। एंड लाइक क्यों खराब होती है? सब लोग तो नॉर्मल है, पब्स में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आप जब हमारे उम्र के हो जाओगे, 40-45 की उम्र के हो जाओगे, एंड देन व्हेन यू विल हैव लिवर प्रॉब्लम्स, और व्हेन यू हैव अलग अलग कोई जब आपको डिजीज हो जाएंगे, और जब आपको प्रॉब्लम होंगे, दैट टाइम यू विल से काश मैंने बात सुन ली होती, I should have done this, so things would have been normal. So that is the reason I would say कि आप लोगों ने नहीं अल्कोहल या फिर
ये जो स्मोकिंग के जो सीन्स होते हैं इनके पास में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए. You should try to avoid looking at those scenes, and you should try to understand that this is not the proper thing to really look at. Also, many of the times हम मूवीज की वजह से, टीवी की वजह से ना हमारी लैंग्वेज बहुत खराब हो गई. जैसे हम लोग कोई अगर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, शी इज लुकिंग हॉट, है ना. या फिर hey dude, how are you? Now dude, hot, then it is swag. ये सारी ना स्लैंग लैंग्वेजेस होती है. स्लैंग लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो अच्छी नहीं होती है, जो मतलब आप डूड के लिए आप कूल भी बोल सकते हो, या सॉरी डूड के लिए आप हाई फ्रेंड भी बोल सकते हो, हेलो भी बोल सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. लेकिन हे डूड बहुत कूल लगता है ना, बोलते हो हे डूड, बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ आई एम टॉकिंग समथिंग डिफरेंट, बट दैट इज समटाइम रियली नॉट नीडेड फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये स्लैंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल जितना हो जाए उतना कम करो, दैट इज ऑलवेज गुड फॉर यू, बिकॉज देन दिस विल मेक यू स्पीक इन अ प्रॉपर लैंग्वेज. ऑल्सो मूवीज की वजह से एक और चीज हम लोग को लगती है कि क्या flirting and romance is just okay. You can just flirt with anybody. You can just have romance with anybody. You can just go and have relationships with n number of girls and n number of boys. But that is not the truth. प्यार ऐसे ही नहीं होता है. Flirting is really not needed at this age. Also, dating a girl or a boy at this age is really not that important. But ये बात हम लोग को शायद समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हम लोग को टीवी मूवी में यही दिखता है that it is more than okay. It is okay to have this kind of relationship and this kind of girls and boys around us. That is more than okay. Also, हम लोग जब ये मूवीज और टीवी देखते हैं ना तो हमको बिल्कुल स्किनी गर्ल्स एंड हैंडसम बॉयज दिखते हैं हमको, है ना. वी फील दे आर सो हैंडसम एंड दे आर सो hunk and the girls are so beautiful and they have so attractive bodies, but trust me, they don't have attractive bodies. Even boys don't have attractive bodies. ये सब फोटो मतलब कोलाज किया जाता है, फोटो मेकिंग, एक फोटोशॉप किया जाता है इन लोगों को. इवन द हीरो हीरोइंस आर फोटोशॉप. यानी जो आपको फिगर दिखाई जाती है, जो आपको 6 पैक्स दिखाए जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे बागी की मूवी का बड़ा डिस्कशन चल रहा है, सो लेट मी टेल यू. बागी मूवी में जो उसका जो 6 पैक दिखता है ना, 6 या 8 पैक जो दिखता है, नाउ इवन इफ यू चेक हिम इन नॉर्मल नॉर्मल फोटोज में उसका 6 पैक 8 पैक नहीं है. नॉर्मल मतलब जब वो किसी टीवी शो पे, किसी नॉर्मल शो पे जब वो खुद को प्रेजेंट करते हैं तो उनका 6 पैक 8 पैक नहीं दिख रहा है. बट why you can see it in the TV? Because उसको मेकअप किया है, उसको अलग अलग तरीके से उसको मेकअप किया था. उनको he was given pills, he was not given food for more than 3 to 4 days. आपको पता है ओम शांति ओम मूवी थी, आपने देखी ओम शांति ओम मूवी? There was a movie, okay, it must be 5-7 years पहले का मूवी था. And that Shahrukh Khan was asked कि आप एक सीन में बहुत पतले दिख रहे हो, तो how did you manage to have that 6 pack at this age? So how is it really कि इतना हो सकता है? तो you know what Shahrukh Khan said? He said कि मैंने 4 दिन खाना नहीं खाया. I was just on pills. इनके एक पिल, there are some pills which reduces your hunger. So वो pills खा के वो 4 दिन रहे, and that is why उनके जो पेट के मतलब उसके पेट का बेचारे के जो हमारा पेट कैसे से पास में आ जातं, तर आतड्या दिसतात ना आपल्या, तर त्या आतड्या दिसत होत्या त्याच्या, आणि त्याच्यामुळे he was looking so handsome. So the truth was, अब imagine करो हम 4 दिन बिना खाए रहे तो क्या होगा? रह पाएंगे हम लोग? 4 घंटे भी नहीं रह सकते. हम लोग को 4 घंटे के बाद मम्मा खाने के लिए दो, मम्मा भूख लगी, सुबह उठते से ही लगती है ना भूख. So imagine they do that and they are paid for it. Also, the girls who look so skinny, so beautiful, with all beautiful makeup, even their bodies are photoshopped, their bodies are collaged, their bodies are given different shapes by the cameraman. So ये cameraman का क्वालिटी होता है, कैमरामैन का थॉट प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ये हीरोइंस इतनी ब्यूटीफुल दिखती है. Actually, they are not that skinny. Actually, they are not that दुबला पतला, and actually they don't have that fair color. ये सब चीजें उनको मिलती है because of the makeups, because of the cameraman, and because of the director's wish. So उसकी वजह से उनको हर एक को अपना अपना एक बॉडी शेप मिलता है.
सो दैट इज व्हाई डोंट थिंक कि ये इतने दुबले पतले है, इतने स्किनी है, मुझे भी ऐसा होना है, हम रह ही नहीं सकते इतने दुबले पतले। एंड ऑल्सो दे आर पेड फॉर देयर बॉडीज। हम लोग इतने दुबले पतले हो जाएंगे, कोई हमको पैसे देगा? somebody will say, oh you're looking very beautiful, आप तो बिल्कुल 50 किलो के थे 40 किलो पे आ गए, ये लो 1 लाख रुपए ऊपर से। कोई देगा हमको? nobody will give us. They'll be like, भाई तुम्हारा पेट, तुम पतले हो गए, हमको क्या करना है? But then hero heroines are paid for it, and that is why they have to maintain the bodies, and that is why they do gymming, that is why they take pills, that is why they look so beautiful. हम लोग को ये कुछ नहीं होना है, we are a real life people, हमको कोई कुछ नहीं देगा, so we really don't have to think about it, okay? Also, अगर आप ज्यादा टीवी देखोगे तो क्या प्रॉब्लम होता है? Your eyes are a big problem. Now I cannot watch lot of मैं ज्यादा मोबाइल या ज्यादा लैपटॉप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ. I have to use my lenses because that troubles me. उसकी रेज इतनी हार्मफुल होती है. नाउ एट दिस एज इट इज ओके, एट द एज ऑफ 40 इट इज ओके कि हमको 40 के एज में हमको चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन हम कितने बच्चों को बहुत जल्दी चश्मा लगाना पड़ रहा है? इट इज बिकॉज व्हाट वी डू इज हम इतना पास से टीवी देखते हैं ना, ऐसे पास पास में आगे टीवी देखते हैं हम लोग, या फिर हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बहुत करीब से, वी वॉच मूवीज फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, ये सारी चीजें होती है, इसके लिए हमको बहुत तकलीफ होती है. एंड दैट इज व्हाई your eyesight is a problem, you get obese तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम लोग को टीवी की एड देख के, और जब टीवी चलता है, मूवी चलता है, तो हमारा क्या चलता है, इसीलिए थिएटर्स में भी आपको खाना मिलता है. बिकॉज देन जब आप टीवी और मूवी देखते हो तो आपका ब्रेन जो है ना वो ऑटो पायलट पे चलता है, कि आपके ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका हाथ सिर्फ मुंह तक जा रहा है, आप चबा रहे हो, पेट में जा रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट हैपनिंग, यू आर वर्किंग ऑन ऑटो पायलट मोड. ऑटो पायलट में आपने क्या खाया, वो सिर्फ इट इज कंज्यूम्ड एज फैट्स, द एनर्जी, द प्रोटीन्स, द विटामिन्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय अस. So there are many such problems happening in you. I'm not saying कि टीवी में सब कुछ खराब है. हाँ, मैंने बहुत खराब बोल दिया ना कि टीवी मूवी सब खराब है. So it's not that. टीवीज में, मूवीज में सब खराब नहीं है. हमारे टीवी में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हमें देखने चाहिए, लाइक नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, हिस्ट्री चैनल है, न्यूज चैनल्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने जरूर देखनी चाहिए, सो दैट वी विल लर्न, वील अंडरस्टैंड एंड वील गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू आर द फ्यूचर जनरेशन. आप जब सोसाइटी में आओगे, आप जब जॉब करने के लिए जाओगे, आप जब 10 साल बाद जब आपका जब आपका वर्किंग एक्चुअली चालू होगा, तो इमेजिन करिए आपके सामने कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स आने वाले हैं. If you try to work from now only, if you try to study from now, आपका पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. यस, डिस्कवरी चैनल इज देयर, डीडी न्यूज इज देयर, सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रियली very 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 important for you and you should watch. मूवीज में जैसे somebody had wrote मणिकर्णिका, हिस्टोरिकल मूवीज है, तो ऐसे कुछ अगर हिस्टोरिकल मूवीज आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड what was the history, not to look at the clothes, not to look at the beauty, not to look at the jewelry, all these things. TV also have sessions like E-Vigya. I'm sorry, I don't know this. What is this E-Vigya? Okay, do you want to write Vidya? Okay, E-Vidya, yeah. E-Vidya is also good. So TV में ये जितनी सारी चीजें आपके नॉलेज के लिए है, आपने 100% देखनी चाहिए. So ऐसा नहीं है कि हमने टीवी नहीं देखना है, क्योंकि अगर टीवी नहीं देखेंगे तो हम सबके सब पागल हो जाएंगे. We cannot live in the age, we cannot live without TV in this age. We cannot live without TV, we cannot live without mobiles, we cannot live without laptops. Rather, we cannot live without any electronic device. So ये सारी चीजें हमारे लिए equally important है, but ये चीजों को कितना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीजें अगर हमने हमारे दिमाग में डाली तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा. एंटरटेनमेंट should be there for some particular time, but that doesn't mean that entertainment should be the only important factor in our life. It has to be a mix and merge part of it, okay? And ma'am, what about movies based on true events? 2611. Yeah, these are really good movies. So as I said, there are movies where you can go for biographies hai, real events wali jo movies hai, you can surely watch the movies. I would always prefer, instead of watching, read the things, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो ना, उतना आपकी आंखों के रेटिना को बहुत ज्यादा अच्छा होता है, फायदा होता है, because then your retina works faster. So आपके रेटिना, यानी अगर आपको चश्मा भी है and if you read with this particular distance, आपका चश्मे का नंबर धीरे धीरे कम होगा.
बट जितना आप मूवी टीवी देखोगे उतना आपका नंबर बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेटिना पे स्ट्रेन ज्यादा आ रहा है. व्हेन यू रीड, योर रेटिना का स्ट्रेन ऑटोमेटिकली कम होता है, आपका ब्रेन सूदन होता है, जिसकी वजह से आंखों को प्रेशर बहुत कम हो जाता है. व्हेन यू रीड देयर इज नो लाइट रिफ्लेक्टिंग. लाइक अब जब हम ये लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल का या टीवी का इस्तेमाल करते हैं, सो द रेज आर रिफ्लेक्टेड. मेरे ऊपर ये जो रेज आ रही है, ये टीवी की रेज आती है, लैपटॉप की रेज आती है. बट व्हेन यू रीड देयर इज नो रेज कमिंग. So preferably if you read, that is always good. But if you think कि नहीं, हम लोग को ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, because there are people who don't like reading. Like I am not a reader, I am a auditory. तो मुझे जितना ज्यादा सुन के चीजें समझ में आती है, I enjoy that. So you can listen or you can read. Preferably don't watch things, क्योंकि उससे आपकी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाती है. But if you still want to watch, you can watch these things to understand what is happening, what happened in that particular time, how things, how did people save themselves. ये सारी चीजें आप कर सकते हो, no doubt about that. Reading is very important. Yes, I totally agree. Reading is totally important, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा होगा, उतना आप ज्यादा नॉलेज जमा कर पाओगे. क्योंकि एज आई सेड, जब आप मूवीज देखते हो या टीवी देखते हो तो आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड पे चलता है. तो देयर इज नथिंग स्टोर्ड इन योर ब्रेन, देयर इज नथिंग गोइंग इनटू योर ब्रेन. ये सिर्फ दिमाग खाली हो जाता है आपका. ओके, बट जब आप पढ़ते हो तो द ब्रेन इज नॉट ऑन द ऑटो पायलट मोड, इट इज वर्किंग, इट इज going on in a very proper manner. You're understanding there is something going inside your body, inside your brain. So that is why you should read a lot. Okay. Yeah, DD National Ramayan, yes, you can surely watch. क्योंकि वो अगर वो सबसे पुराना वाला रामायण होगा तो ही देखो, क्योंकि उसके बाद में जितने भी रामायण के वर्जन्स आए हैं, दे आर ऑल हॉरिबल. मतलब उसमें पता नहीं वो राम को कितना ग्लैमरस दिखा दिया है, सीता को इतना ग्लैमरस दिखा दिया है, और उनके जो अशोका वाटी, वो उनके इवन जो शूर्पणखा वगैरह ना, दे आर आल्सो सो ग्लैमरस. यानी इतनी अगर ब्यूटीफुल क्या वो चुड़ैल या जो भी थी वो अगर होगी, तो इमेजिन करो हमारा दुनिया कितना अलग हो जाएगा. सो राक्षस, जो वो राक्षस थी वो इतनी ब्यूटीफुल दिखती है. सो एक्चुअली ऐसे नहीं होता है. मतलब हर चीज को आपको ग्लैमराइज करने की जरूरत नहीं, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द टीवीज एंड मूवीज, दैट एवरीथिंग इज बीइंग ग्लैमराइज्ड. एंड हम लोग सिर्फ उस ग्लैमर के पास में ध्यान दे रहे हैं, हम लोग एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे कि ये ग्लैमर हर चीज में नहीं है. द रियल लाइफ, देयर इज नो ग्लैमर, इट इज ओनली द ट्रूथ दैट इज हैपनिंग विथ यू. So yeah, these were some of the things I thought I should share with you. As a student, you need to really understand कि हम लोगों ने क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए. Now let us move on to the questions. If you really have any questions, or if you really bang on me, if you really want to bang on me कि मैम क्या कर दिया, अब हमारी मम्मी हमको जो देख रहे थे वो भी नहीं देखने देंगे. So if you really want me to explain something, you can surely ask me. Yes, students, if you have any questions, either you can choose the chat portal, or you can also raise your hand. So I will unmute yourself. Yes, that is also true. Very good. Rahul has written कि हमको जो news अभी दिखाई जाती है, it is more on the TRP basis and the business basis. It is nothing real on that. This is very correct, and that is why आप जब टीवी भी, आप जब न्यूज चैनल्स भी देखते हो, यू नो, मतलब आई विल नॉट टेक एनी एंकर्स नेम, इन जो टीवी एंकर्स है उनका नाम नहीं लूंगी, बट आजकल के बहुत सारे टीवी एंकर्स, इंडिया वांट्स टू नो, टेल अस व्हाट इज हैपनिंग, क्या इस तरीके से इंडिया चल सकता है, आप देख रहे हैं अब इंडिया के ऊपर बस हमला होने वाला है, या फिर पाकिस्तान के लोग किस तरीके से इंडिया पे हमला करना. दिस इज नॉट द वे ऑफ न्यूज, यू नो. दिस इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर जिसमें मतलब मार्केटिंग में इस पर्टिकुलर बिहेवियर को अग्रेसिव बिहेवियर बोला जाता है. सो व्हेन यू डोंट नो द ट्रूथ बट स्टिल यू शाउट, तो क्या होता है, लोग ऑटोमेटिकली लगता है कि हाँ ये कुछ तो भी सही बोल रहा होगा. हम जब नॉर्मली गुस्सा हो जाते तो यही करते हैं, हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, बिकॉज देन वी डोंट हैव अ राइट पॉइंट, बट वी नो कि नो नो नो, आई कैन नॉट बी रॉन्ग. हम नॉर्मली एज अ फ्रेंड ये कर लेते हैं, नहीं तू ही गलत था, मैं तो सही था. सो दिस इज व्हाट इज द साइकोलॉजी यूटिलाइज्ड बिहाइंड these movie channels. So अगर आप ऐसी कोई न्यूज सुन रहे हो जहां पे एंकर बड़े चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, एंकर किसी और का नहीं सुन रहा है, सिर्फ खुद की बड़बड़ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है और बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, तो अंडरस्टैंड एंकर झूठ बोल रहा है. एंकर इज नॉट ट्रू. सो व्हेन the person is silent,
and he's just trying to tell a perspective of one particular thing. He is not trying to prove it. So जब वो prove नहीं कर रहे, वो सिर्फ बताना चाहते हैं, तो that is proper news, and that is what we need to see कि ऐसे कौन से न्यूज चैनल है जो सिर्फ बता रहे हैं चीजों को, जो एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं. सो इसीलिए टीआरपी से ज्यादा ऐसे कोई चैनल देखो जहां पे, जैसे एनडीटीवी एक चैनल है जहां पे आपको न्यूज बहुत अच्छी और बहुत सच्ची मिलेगी, जहां पे आपको बहुत ज्यादा अफला तफली नहीं मिलेगी न्यूज में. एंड इफ यू रियली वांट टू नो, गो ऑन गूगल एंड वेरीफाई एवरी न्यूज. डोंट ट्रस्ट ऑन एनी न्यूज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ना बहुत सी बार जो न्यूज देखते हैं उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग एनडीटीवी पे भरोसा रखो या किसी भी चैनल पे भरोसा रखो, बट देन आपको अगर लगता है कि ये न्यूज आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, गो चेक ऑन गूगल, सर्च दैट आपको क्या लगता है ये न्यूज कितनी सच है, कितनी झूठ है, एंड देन यू ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि आपने न्यूज पे भरोसा रखना है कि नहीं रखना है. ओके, तो या Yes, ma'am. Ma'am, sometimes we get to listen from the youngers that elders ask us not to watch TV, but they do. So how can we consult with the youngers and elders? You know, normally it happens, your action speaks louder than word, and what the elders will do, the same the youngers are going to do, no doubt about that. So somewhere if people are behaving like this, and if we really want to consult only to our kids कि हाँ ठीक है बड़े नहीं बोल रहे हैं फिर भी हमको नहीं देखना है, even if they are watching we shouldn't watch, I think let us tell them that why we shouldn't watch and what should we do rather than what should we not do. क्योंकि हमारा बच्चों का ब्रेन ना बड़ा clear wired होता है. when we tell them don't do it, they'll do it, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं है ना करने के लिए. आपने जो नहीं बोला है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है. So if I tell instead of reading, instead of watching movie, just go and play for an hour. So you're giving me a clear instruction कि मुझे करना क्या है. So that is basically from child psychology point of view, if I say, it is always good कि आप बच्चों को क्या करना है ये बताइए, क्या नहीं करना है वो बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि जब नहीं करना है बताओगे तो पहले ज्यादा किया जाएगा. इसीलिए जब बच्चे को बोलते बेटा मारना नहीं, तो पहले 2 मार के आएगा. So instead of telling बेटा प्यार से सबके साथ में रहना, तो शायद चीजें बहुत इजी हो जाएंगी हमारे लिए. सो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विद द टीवी पॉइंट आल्सो. Yes, ma'am. And just I want to take advice for the parents as well, because we make if we have a child at home na, so from the very first growing age we make him or her habitual of such a things. For example, if sometime mama is busy somewhere and child is crying, so mama give just turn on the TV, beta just watch it, or give mobile. So how can we manage it instead of giving mobile or TVs? How can we manage the child? You know, I think as a parent सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये होनी चाहिए कि हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, हमारे मतलब हम जहाँ है, जैसे like what I did preferably with my child when he was young. So मुझे खुद को भी ये प्रॉब्लम आता था क्योंकि I used to work in the school, so almost दिन में 8-10 घंटे स्कूल में काम होता था, and then I used to be with the child. तो 100% even I have faced all the problems, but I think instead of scolding the child and telling जाओ बेटा टीवी देख लो, वो 5 मिनट का टाइम आप बच्चे के लिए दे दो and tell him that what can be the creative things जो आप इस particular टाइम में कर सकते हो. So you as a parent, if you can just be little creative. So आप अगर आपके घर के बर्तन, मतलब स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल का जब बच्चा होता है, तो घर के बर्तन दे दो, या फिर अगर बच्चा किचन में है तो उसको धीरे धीरे उसको चीजें छीलना या तोड़ना सिखा दो. घर में अगर आप काम कर रहे हो तो आटा दे दो बच्चे के हाथ में, थोड़ा धीरे झाड़ू मारना सिखा दो. सो यू नो ऑल दीज थिंग्स मेक हिम लिटिल क्रिएटिव विद यू, सो दैट ही विल अंडरस्टैंड कि बच्चे को आप किस तरीके से डील करना है लाइफ में. सो आप जितना उसको आपके साथ में प्रैक्टिकल वर्क कराओगे, उतना बच्चा टीवी या मूवी से ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा. डोंट से दैट तू उधर जा मैं मेरा काम करती हूँ. जब आपके साथ में बच्चा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना जरूरी है, किस तरीके से करना है, ये वो भी समझेगा. एंड देन he or she will automatically stop troubling you and will not trouble you. So that is what I think we should do. Absolutely, ma'am. There is a question from the viewers that how can we justify that the things are imaginary or things are reality? For the same I said कि please go and verify on Google, go and check. Don't just read only one site on Google. You can check 1000 sites. आप एक particular जब news डालते हो, तो आप एक particular जब कोई sentence डालते हो, तो उसके लिए give me 1 second again. The battery is low, please. So you can get 10,000 options to it. आपको
बहुत सारी अलग अलग न्यूज में आर्टिकल्स मिलते हैं उसके ऊपर। तो जितने भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो उतने सारे आर्टिकल्स पढ़ो, उन सारे आर्टिकल्स पे कुछ सोचो, मंथन करो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझेगा कि कौन सी न्यूज सही है और कौन सी न्यूज गलत है। सो दिस कैन बी डन। Ma'am, can we advise the viewers instead of going through the TV news, we can refer the daily printed newspapers, Yes, selected of newspaper course. where we can Yes, find the actual news? yes. There was again a survey from Indian media. So maybe it is written media, maybe it is radio media है, audio media है या visual media है. ये तीनों जो medias हैं इंडिया में, it is a very big survey done in 2018. So that survey says कि इंडिया में ये जो तीनों जो medias है, they are more utilized for the publicity of a particular thing or a particular institution or a particular set of people. And also ये स्पेशली जो रिटन मीडिया है, जो हमारा जो न्यूज है, इसमें सारे अगर आप पेपर खोलो तो पहले प्रॉब्लमैटिक न्यूज ही आती है। किसी का डेथ हो गया, किसी ने सुसाइड किया, कहीं पे अटैक हुआ, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए। सो इज समवेयर ट्राइंग टू reframe and rewire your brain to the negative things. So इसीलिए written media पे I always say जितना कम हो उतना न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर के जो एंड पेजेस है, जो जहाँ पे स्पॉट्स है या फिर ऐसी कोई चीज है, तो वो 100% पढ़ सकते हो, लेकिन शुरुआत के 1-2 पेजेस तो बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पेज में आपको हमेशा पेज पहले खुलने के बाद में इतनी डेथ्स, इतने रेप, इतने प्रॉब्लम्स, यही सारी चीजें दिखती है, फैमिली अब्यूज दिखता है, ये सारी चीजें होती है। सो समवेयर आई वुड प्रेफर रिटन मीडिया का इस्तेमाल ये सारी चीजों के लिए कम हो तो बेटर होगा। बट if the viewers are okay with it, I have no issues. You can surely read it. Okay, there are some more questions. Can we just go ahead? Yes, ma'am, but how can we identify that the things we just imaginary? Okay, in the movies, are they imaginary or real? In movies, everything is imaginary. Nothing can be real. Trust me. क्योंकि अगर मूवी में कुछ भी रियल होता तो वो जो एक्टर्स है ना, वो खुद ये चीज परफॉर्म कर रहे होते। आप उनके कपड़ों से लेके उनके बिहेवियर तक हर चीज देखिए, ये कोई भी चीज रियल नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स टू इट। लाइक देयर आर big heroines जिनको डिप्रेशन के थ्रू जाना पड़ा, and they show in the movies that how they are very happy and how they are successful and how they are dealing with their problems. The biggest thing, Sushant Singh, he made a movie on not to commit suicide and he committed suicide. तो इसीलिए there is understand that आप मूवी में जो कुछ देखते हो, everything is a fiction, nothing is real and nothing will ever be true in these movies. It is just to entertain you, but it has no right intentions except entertainment. Okay. Yeah. Yeah. Should we take the questions over here or what should we do? No, just one student is there. She is asking that historical based movie, the quantity means in a percentage, how much it reality and how much means they are asking like this. Now see, historical movie में आप जब मूवी देखते हो ना, तो आपको कोई एक पार्ट उस हिस्ट्री का पर्टिकुलर एक पार्ट दिखाया जाता है। जैसे अगर मैं मणिकर्णिका की बात करूं, तो मणिकर्णिका का सिर्फ उसका जो लाइफ है वो दिखाया गया है, बट देन उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हुई उसके साथ में, वो सारी चीजें, क्योंकि 3 घंटे में आप एक 50 साल की लाइफ नहीं डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आप कोई भी मूवी ले लो, जब पद्मावत मूवी बनी तो सिर्फ पद्मावती के आसपास हुए हुए प्रॉब्लम्स बताए गए, लेकिन बाकी अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से बाकी काम किया ना, जिस तरीके से उनको इतना डेंजरस बताया गया, क्या वो सच में इतने डेंजरस थे, क्या वो जो राजा था वो सच में इतना प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा राजा ऐसे डरपोक राजा था कि वो अपनी बीवी को सच में नहीं बचा सकता था। No, all these things were not very clearly depicted in the movie. So आप जो भी ऐसी historical movie देखते हो, उसके पीछे का जो reality है, go and read. Yes. पढ़ना is the only answer to every question. You know, the more you read, the more you grow your knowledge. The lesser you read, you reduce your knowledge to whatever you have seen. So if you want to trust anything, go and read the history of that particular thing. And if you really don't want to go and read the history and you're like a person ki nahi mujhe nahi padhna hai, तो go and watch the history channel.
उसमें बहुत सारी बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है. सो आप अगर दिन के 10 घंटे अगर आप टीवी देख रहे हो तो 10 के 10 घंटे हिस्ट्री चैनल लगा के बैठ जाओ, आपको दुनिया की सबसे बेस्ट हिस्ट्री, सबसे बेस्ट नॉलेज आपके पास में होगा. सो ट्राई एंड डू दैट. या Ashish sir, do you want to ask any question? Yes, sir. Yes. Ma'am, one question is from our viewers side. Ki, what is the reality behind the reality shows? Everyone wants to learn. Today's the world, students and childs and all are fascinated towards the reality shows. They are looking towards the dancing shows. They are looking towards the singing shows. I also giving lots of times an audition somewhere, lots of time. But I seen that reality, and I always says this reality to students. So please share this reality with our students. I would like to ask you, what is your opinion on the reality shows? As you have given auditions, what do you really think about the reality shows? Ma'am, when I was in the given an audition, that time I selected for the top 60 rounds. Means Mumbai में Indian Idol का ये था, 60 में I selected. But आगे चल के दे आर कि वो लगा है एंड किसी का बात है ऐसा बोल के उन्होंने तो वहां से भेज दिए वापस. 1-2 दिन मुंबई में स्टे हुआ, फिर बाद में उन्होंने वापस भेजा. मीन दिस इज द रियलिटी. फिर बाद में कुछ लोगों ने बोला कि रियलिटी, इसके पीछे रियलिटी शोज डोंट हैव अ रियल बिहाइंड, कुछ भी उनके पीछे बिहाइंड रियल नहीं होता. सो शेयर दिस रियलिटी बिकॉज स्टूडेंट्स आर चाइल्ड्स आर वेरी फैसिनेटेड फॉर इट. Yeah, so all my dear students, reality show का सबसे बड़ा reality यही है कि उसमें सब झूठ है, उसमें कुछ भी रियल नहीं होता है. That is the only reality. Now why? जैसे आपने सर ने भी खुद ने कहा कि उनको इंडियन आइडल के लिए उनका ऑडिशन हुआ एंड उनको मुंबई में he was there staying for 2 days और बाद में बताया गया कि नहीं दूसरे किसी का है. Now ये दूसरे किसी को चांस दिया जा रहा है, दूसरे किसी का बेटर है, इसका मतलब किसी ने वहां पे पैसे लगाए हैं. सो आपके पास में जितना ज्यादा पैसा हो, आप जितना ज्यादा एक्सपेंसेस करने के लिए तैयार हो, उतना आप आगे जाओगे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रियलिटी शोज इज रियली रूइनिंग आवर लाइव्स बिकॉज इट इज मेकिंग अस बिलीव कि आप ऐसे कुछ करोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे, आप बहुत पैसे कमा लोगे. बट दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. जितने भी रियलिटी शोज के जो बच्चे जो बाहर निकल के आए हैं, they are facing lot of problem, psychological problem, mental health problem, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे एक बहुत बड़ा स्टारडम देखा हुआ है. उनको मीडिया उनके पीछे थी, लोग उनके पीछे थे, लेकिन ये सब कितने दिन रहेंगे ना. लाइक there are guys who I have seen, जो एक छोटा बच्चा जो हमारी स्कूल में था, I don't want to tell the name of the child, but he was there in one of the biggest shows and वो वहां से फर्स्ट प्राइज जीत के आया था from Dance India Dance, if I'm not wrong, right? Dance India Dance से वो लड़का जीत के आया था. When he came back, he was so happy. उनके जो सर थे, उसको जो एक गाड़ी और उसको जो कैश प्राइज मिला था, उसका कुछ अमाउंट उसने वो सर को दिया. So it happened in 2018, right? 2017-18, something like that. वही कुछ साल था जब उसको प्राइज मिला था. So he came back, he was very happy, and वो stardom, everybody was like, oh, you are there. Let us say the name of the child is Om. So Om, आप आ गए यार, क्या आप तो इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ में घूमे हो, ऐसे रहे हो. तो वो लड़के के दिमाग में भी हवा चली गई थी. Yeah, I am like, मैं शाहरुख खान थे मेरे साथ में, मैंने इनके साथ में शो किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है. But then today the child is nowhere. He is still in the same class. He is still with the same people. Now वो जो celebrities और वो जो judges थे जो उसको personally जानते थे, जिनके पास उनका नंबर था, ये लड़का कभी भी कॉल कर सकता था जब शो हो रहा था तब, today they have blocked the child. They don't talk to the child. They are like, बेटा हम आपको नहीं पहचानते, ठीक है आपका हो गया. So trust me. And he had done lot of expenditure. उसके parents ने like he got a prize of rupees 1 crore or something like that. कुछ ऐसी कुछ 75 lakhs या 80 lakhs का उसको कुछ प्राइज मिला था with a car. So that was his prize. To get this 80 lakhs और उसको उस लेवल तक लाने के लिए his parents had already spent more than 2 crore. तो जिसके पास इतना पैसा है वो ही इस शोज में जीत सकते हैं. सो ये 2 करोड़ सिर्फ उन्होंने वो जो कंपनी थी वो जहां पे उसने पार्टिसिपेट किया था उनको नहीं, तो जब ये SMS कैंपेनिंग चलता है ना, दैट सेंड द SMS एंड वोट द चाइल्ड, तो जलगांव में
उस जिनका ये लड़का था, उस इंसान ने हर एक स्कूल में जाके हर बच्चे को, हर इंसान को, और बहुत सारी जगह तो उसने खुद इतने सारे मोबाइल्स खरीद के रखे थे। ऑलमोस्ट उन्होंने 10 से 15,000 नंबर्स उन्होंने खरीद के रखे थे, जहां से ही वाज सेंडिंग द मैसेजेस। सो इतने सारे उन्होंने सिम कार्ड्स खरीद के रखे थे, इतने सारे सिम कार्ड्स उन्होंने फ्री दिए। सो इमेजिन कितना सारा खर्चा किया गया उसको उस लेवल पे लाने के लिए। एंड टुडे वेयर इज द चाइल्ड? nowhere, we don't know him, he is somewhere doing normal, किसी नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है वो, he is not doing anything else. So इसीलिए प्लीज डोंट बिलीव कि आप रियलिटी शो में जाओगे और आपकी लाइफ बदलेगी, रादर डिजास्टर हो जाएगा लाइफ में। रियलिटी शो में बिल्कुल मत जाओ। आप में अगर कैलिबर है तो प्लीज अपने फैमिली में या अपने आसपास में अपने कैलिबर को प्रेजेंट करो, लेकिन रियलिटी शोज में बिल्कुल मत जाओ और अपना कैलिबर वहां पे प्रेजेंट मत करो। दिस इज माय रिक्वेस्ट। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Now, Thank Ashish sir, we are Yes, on the sir. way of concluding, so I request you to present the vote of thanks. Yes, sir, I'm ready with it. Yes, yes, ma'am. Finally, I would like to thank you, all our viewers, and you to behalf of my school. I extend really hearty vote of thanks to our chief guest, Mansi Badare ma'am, who spared a time from his busiest schedule to grace this occasion. Today we have an opportunity to hear your thoughts, and this will be surely going to encourage us in our future events. Definitely, ma'am. Once again, I would like to thank our chairman, Mr. Sandipan Reddy sir, and principal ma'am for their valuable support. I also want to express my gratitude towards our coordinator Tushar Joshi sir, our viewers, for students for their support and interest. So, so today we are going to conclude over here. Thank you, everyone. Thanks. Over to you, Ajay sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.